students, how are you? घर पे ठीक है आप लोग? Please do study well. Your school examinations are coming. Even NTSE is approaching. Olympiads are there. So now you must be prepared for all these. Now in this lecture of biology, today we are going to study about a new chapter, that is heredity and evolution. हमने पिछली बार the chapter on reproduction in organisms और how do organisms reproduce complete कर लिया था. आज हम start करेंगे the chapter on heredity and evolution, and this chapter seems to be difficult, but it is not as it seems. It's easy if you get basic concepts in your mind. You would easily grasp, because इसमें आपको कई चीजें वही लिखनी है जो आप समझते हैं. Sometimes answers to questions are according to your understanding of concepts. तो ये chapter easy है, इसको easy please समझने की try करो. You will understand it very well, and it's very very interesting. Genetics एक ऐसा field है of biology which is highly interesting because it deals with the transmission of characters, कैसे नए characters evolve होते हैं and all that, right? So we start the chapter today, that is heredity and evolution. अब ये जो चीज है, अगर आप अपने माइंड को कंफ्यूज करना चाहते हैं तो दिस इज अ टॉपिक विच विल कंफ्यूज यू टू द एंड. मतलब आपको इतना कंफ्यूज कर सकता है कि आपको समझ नहीं आएगा कि क्या लिखना है. व्हेन यू आर रीडिंग एनसीईआरटी यू माइट फील दैट दिस इज अ कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, ये मुझे क्यों समझ नहीं आ रहा, क्या है, बिकॉज उसमें पैराग्राफ वाइज दे रखा है. आपको इस चैप्टर को ऐसे समझना है इसकी इट इज अ प्रैक्टिकल थिंग विच यू आर सीइंग अराउंड यू. आप इस चीजों को जानते भी हो, बस वो थियोरेटिकली लिखा हुआ है, तो आप इस चैप्टर को समझ के अपने वर्ड्स में भी आंसर दे सकते हैं कई क्वेश्चंस के. ठीक है. सो नाउ व्हेन वी आर स्टडीइंग अबाउट दिस हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, आई नीड टू फर्स्ट एक्सप्लेन यू द टर्म्स. ठीक है. हेरिडिटी, इट इज अ टर्म related to inheritance of characters or transfer of characters from one generation to other. आप जानते हैं, आपने ये बहुत बार सुना भी होगा कि the person resembles father or she looks just like her mother. ये तो अपन बचपन से सुनते आ रहे हैं ना. Everywhere this is the talk. अरे आप बिल्कुल अपने या पेरेंट्स की तरह दिख रहे हैं, या कई बार कहते हैं आप अपने दादाजी को रिजेंबल कर रहे हैं. सम से यू रिजेंबल योर ग्रैंड मदर, कहते हैं ना, ये चीज तो होती रहती है. या यू लुक लाइक योर मैटरनल अंकल और यू लुक लाइक योर मदर्स मॉम, एनीथिंग, ये आपने सुना होगा. ठीक है ना. तो दिस इज अ टर्म विच यू आर अवेयर ऑफ. अब ये क्या है? वाई डू यू रिजेंबल योर पेरेंट्स और योर ग्रैंड पेरेंट्स? Just because you have inherited certain genes from them or characters from them only. You as a being are there because there was a formation of zygote. अपन ने पिछली बार देखा था how do organisms reproduce में कि sperm and ova they meet and form the zygote, and that zygote then develops into a new baby. और zygote में क्या था? The head of the sperm, pronucleus of the sperm entered the ova and it fused with the pronucleus of ova, right, and it formed the zygote. तो दो न्यूक्लियस फ्यूज हुए थे, right? Just to remind you, हमने देखा था, for example, this was the sperm which had 23 chromosomes. This was the ova which had 23 chromosomes. This fused with it and there was a formation of the nucleus of this and nucleus of this fused, and there was one nucleus which was having 46 chromosomes, that was the zygote. And this zygote then divided into the embryo, and these cells grew and grew and grew, and it formed the whole fetus. And when that fetus is born as a newborn child, it is having these characters, जो characters
यहाँ पे स्टोर्ड थे, 23 फ्रॉम योर फादर्स साइड, 23 फ्रॉम योर मदर्स साइड, उन्हीं के अकॉर्डिंग वो किस में ट्रांसमिट हुए थे? डीएनए के फॉर्म में। डीएनए के फॉर्म में आपके अंदर था that small amount of DNA which you received from your parents now has all the instruction, all the blueprint, it is the blueprint of the formation of an organism. तो वो fetus के अंदर उसके parents के ही DNA है और उस DNA के according that child grows up. ठीक है, तो instruction या blueprint या genes जो DNA के ऊपर है वो डायरेक्ट करती है कि organism कैसा बनेगा। ठीक है, तो ये जो यहां से कैरेक्टर्स इधर आ गए, दिस वाज इन द फॉर्म ऑफ डीएनए या क्रोमोसोम्स। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? रिमेंबर क्रोमेटिन मटेरियल, वी हैव स्टडीड इन 9th स्टैंडर्ड। इसके न्यूक्लियस के अंदर भी क्या होगा? क्रोमेटिन मटेरियल। ये दोनों मिलके यहाँ पे आ गए क्रोमेटिन मटेरियल एंड इट फॉर्म्ड अ जाइगोट एंड नाउ दिस न्यू इंडिविजुअल इज हैविंग ग्रोथ एंड देन when this new organism will grow up to the age of puberty or up till the age when the reproductive organs mature, तब तक तो इसका ग्रोथ फेज चलेगा। उसके बाद इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में रिप्रोडक्टिव सेल बनेंगे जो वहीं पे रहेंगे until there is fertilization process and then a newborn child will be there again. So this process goes on and on. So if this transfer of DNA, that is heredity or inheritance. ये क्या हुआ? ये प्रोसेस inheritance of characters from your parents. So and this inheritance of characters is actually this term heredity is related to this only. ठीक है, तो heredity में ये मिला हुआ है या inherit किया इन्होंने, so that is heredity. So hopefully this is clear to you. And you know, generations to generations, why do sometimes you resemble your grandparents? Because in your parents, for example, this was your grandfather, paternal grandfather, this was your grandmother, and this is father, again grandfather, maternal grandmother, this is the mother, and then mother, this will be the child. So see, from here the father was having genes from both these, mother was having genes from both these. So in the child obviously कुछ father की आएंगी, कुछ mother की, and ultimately they are from your grandparents only and they are from their parents and so on and on. So life has been moving on earth in this form. So you have sometimes characters from your grandfathers which were not being expressed here but they are expressed here. So that we will study later on. लेकिन ये पूरा प्रोसेस ऐसे चलता रहता है and this is called heredity. So hopefully this term is clear to you. इस चैप्टर में अपन क्या पढ़ेंगे कि हेरिडिटी के बारे में किसने सबसे ज्यादा रिसर्च किया? There was a saint called Gregor Mendel. I'll tell you about that. And Gregor Mendel worked on a plant called garden pea or Pisum sativum. मैं इसको और आपको बताऊंगी. Right now I'm just explaining the term so that you don't get confused later on reading NCERT. Okay? So heredity में अपन को यही देखना है कि ये जो characters transmit हुए हैं from parents to child, it is a matter of research and matter of intrigue that बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि कई बार कुछ नए कैरेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं, कई बार बच्चे अपने पेरेंट्स को रिजेंबल ना करके ग्रैंड पेरेंट्स को करते हैं, कई बार इन सम प्रोजेनी ऐसी जीन्स देखी जाती है विच इज नॉट एग्जिस्टिंग इन पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स. तो फिर दैट बिकम्स अ थिंग कि ये कहाँ से आई जीन, तो दैट मस्ट बी लाइंग इनसाइड द सेल समवेयर. एक जनरेशन में आके उसने अपने आप को एक्सप्रेस किया. तो ऐसे इस पूरी स्टडी को, इस पूरे रिसर्च को कि कैसे कैरेक्टर्स ट्रांसमिट होते हैं, कैसे रिकॉम्बिनेशन होते हैं, व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स नॉट रिजेंबल देयर पेरेंट्स एग्जैक्टली, ये सारी एक ब्रांच ऑफ साइंस है जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक्स. जेनेटिक्स इज अ टर्म which is a science which deals with heredity and variations. हेरिडिटी और वेरिएशंस क्यों एग्जैक्टली सेम नहीं चल रहे?
हेरिडिटी, वेरिएशन, डीएनए में कैसे रिकॉम्बिनेशन होता है। आजकल डीएनए पे इतना वर्क हो चुका है कि नए नए genes have been introduced and new plants have been designed, plants and animals and organisms, everywhere it is working. So genetics is that branch which deals with heredity and variations. Variation का बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी sorry, change in the characters. So this heredity and genetics was the term, it is branch of science. And this was first used by dealing with inheritance of characters, variations, changes in DNA, mutations, ये सारी चीजें इसमें पढ़ी जाती है और उस ब्रांच को बोलते हैं जेनेटिक्स. And it was first used by W. Bateson. This term genetics was used by W. Bateson in 1905. लेकिन इस फील्ड में सबसे ज्यादा वर्क किया था एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है ग्रेगर जोहान मेंडल. ग्रेगर जोहान मेंडल, जिनके बारे में नेक्स्ट टाइम मैं थोड़ा सा और बताऊंगी, who worked extensively on this and so he is termed as father of genetics. So because his work laid the foundation of this research. Before Mendel, nobody knew how nobody worked on it or nobody thought about it, but he laid the foundation of this research process and found very interesting facts. तो इसीलिए उसको इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है. बट दिस टाइटल वाज बेस्टोड अपॉन हिम आफ्टर हिज डेथ. तो इसके बारे में अपन लेटर ऑन बात करेंगे, लेकिन दिस इज अबाउट हेरिडिटी, इनहेरिटेंस, जेनेटिक्स, जो आपको जानना चाहिए. सिंपली हेरिडिटी इज ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर थ्रू व्हाट, थ्रू डीएनए. डीएनए पे व्हाट, डीएनए पे जीन्स है. अब जीन्स क्या होती है मैं लेटर ऑन आपको बताती हूँ. ठीक है. सो दिस इज अबाउट दिस. एंड इस चैप्टर में अभी हम इसी टॉपिक को ज्यादा पढ़ लेंगे. व्हेन वी आर टॉकिंग, फर्स्ट वी टॉक अबाउट व्हाट मेंडल डिड, व्हाट वाज द वर्क ऑफ मेंडल, हाउ ही फाउंड आउट कैरेक्टर्स आर इनहेरिटेड और नॉट. सो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट वुड, देयर आर 2 experiments which were conducted by Mendel, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे. सो व्हेन व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हेरिडिटी, मेंडल ने क्या किया था, कैसे ट्रांसफर होते हैं कैरेक्टर्स, उसको स्टडी किया था. और ऑब्वियसली ह्यूमंस पे करना मुश्किल है, तो उसने एक प्लांट चूज किया था, पी प्लांट, और उस पे वर्क किया था. तो अपना नेक्स्ट टॉपिक वो होगा कैसे उसने स्टडी किया था, उसको क्या रिजल्ट मिले थे. ठीक है. देन वी वुड बी टॉकिंग अबाउट सर्टन लॉज विच आर देयर फॉर इनहेरिटेंस, जो मेंडल ने प्रपोज किए थे. ठीक है. तो एक पार्ट तो ये हो गया अबाउट दैट. देन सर्टन थियोरीज रिलेटेड टू इवोल्यूशन. ठीक है. ये तो हो गया हेरिडिटी के बारे में. After that we would discuss about this topic, that is evolution. ठीक है. इस चैप्टर का मैं आपको एक बेस ही बता रही हूं ताकि कंफ्यूज मत हो ना. उसके बाद हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन. अब व्हाट इज दिस, एक्चुअली दीज बोथ टर्म्स आर रिलेटेड. कैसे रिलेटेड है देखो. सपोज देयर इज जनरेशन 1, मान लो दिस इज जनरेशन 1, गिव्स राइज टू जनरेशन 2, गिव्स राइज टू जनरेशन 3. So this is what, these are inheriting characters from this is inheriting characters from this. ये हम जानते हैं. अब ये चलता जाता है and millions of years from when life began on earth, तब से चला आ रहा है. ठीक है. So heredity चल रही है. लेकिन इस inheritance of characters में क्यों ऐसा नहीं होता कि exactly parents की कॉपी ही बन जाते हैं children? That is because there are certain variations in organism. तो हम उन वेरिएशन के बारे में भी बात करेंगे. एंड दिस प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस अल्टीमेटली यहां पे, सपोज देयर वाज अ सर्कल एंड देन अ सर्कल एंड देन अ सर्कल एंड देन इट बिकेम लाइक दिस. फॉर एग्जाम्पल दिस वाज जनरेशन 4, फिर जनरेशन 5 तक आते आते दिस सर्कल became little long like this and ultimately the circle. So there is lot of change in this. Even when I am drawing, for example, I draw a circle,
आई एम ड्रॉइंग अ सर्कल, ट्राइंग टू ड्रॉ एग्जैक्टली, लेकिन एग्जैक्टली नहीं बनते when it is a natural process. If I take a figure and sit and draw with the help of something तब तो होगा, लेकिन ये तो नेचुरल प्रोसेस है ना, हेरिडिटी, तो नेचर पे डिपेंड करता है. तो दैट प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ जीन्स, उसमें भी कई बार वेरिएशन आते हैं. और जब धीरे 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 ये चेंजेस आते हैं ना, जैसे यहां से आते आते ये हो गया, ये चेंजेस एक्यूमुलेट हो जाते हैं ऑर्गेनिज्म में. और ये पूरा प्रोसेस जो है, व्हाट डू वी से, दिस वाज ओरिजिनल, this generation is different from this. Why? Because they have evolved. Certain new characters has evolved. Certain new character has unfolded. तो ये जो पूरा heredity is ultimately leading to what? Evolution also. तो ये दोनों terms related है. Inherit करते हैं characters, but because of various reasons there arise some वेरिएशन और चेंजेस. और वो चेंजेस धीरे धीरे, इसमें थोड़ा चेंज आया, इसमें थोड़ा और आया, ऐसे करते करते एक जनरेशन में काफी नजर आने लग जाते वो चेंज. तो हम कहेंगे कि नए कैरेक्टर्स इवॉल्व हो गए. और दिस फुल प्रोसेस ऑफ अनफोल्डिंग ऑफ न्यू कैरेक्टर्स इज टर्म्ड एज इवोल्यूशन. सो हेरिडिटी, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स is related to evolution. It ultimately leads to unfolding of new characters evolve and the whole process is evolution. तो ये दोनों terms related है. और जब मैंने आपको कहा कि ये changes आते रहते हैं, उन changes के लिए अपन word use करते हैं variation. Why does this happen? Why is not every characters, DNA तो inherit हो रहा है. जब ये डीएनए इनहेरिट हो रहा है तो एग्जैक्ट कॉपीज होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता. व्हाई इज नॉट दैट नॉट हैपनिंग? बिकॉज देयर आर वेरिएशंस व्हिच लीड टू इवोल्यूशन. समझ में आ रहा है? तो इन वेरिएशंस के बारे में भी हमको पढ़ना है कि कुछ तो एक्वायर्ड होते हैं, कुछ जर्मिनल होते हैं. कौन से वेरिएशन इस जनरेशन से नेक्स्ट तक जाएंगे, कौन से नहीं जाएंगे, ठीक है, वो पढ़ेंगे हम. ठीक है. सो इन दिस चैप्टर दिस इज द बेसिस. सो यू अंडरस्टैंड इट. वेरी सडनली क्वेश्चंस आपको मेंडल के वर्क पे आ जाते हैं, मेंडल के लॉज पे आते हैं. कई बार आपको इवोल्यूशन पे जो क्वेश्चंस आते हैं दे कंफ्यूज यू अ लिटिल बिट, बिकॉज यू थिंक कि इसमें लिखना क्या है. एनसीईआरटी में ये एक्सप्लेन्ड है, कैसे लिखे. एनसीईआरटी हैज टेकन अप एग्जांपल्स जस्ट टू एक्सप्लेन दिस होल प्रोसेस, कि कैसे कैसे एक चीज ये पूरे प्रोसेस को डिटरमिन नहीं करती. वेरियस प्रोसेसेस आके मिलके एक इवोल्यूशन को इफेक्ट करते हैं. ऐसा नहीं है कि कोई एक ही गवर्निंग बॉडी है कि ये चीज चेंज कर सकती है. नहीं, देयर आर वेरियस फैक्टर्स एक्टिंग व्हिच लीड टू इवोल्यूशन. और इस पूरे चैप्टर में वही फैक्टर्स के बारे में डिस्कस्ड है. जब मैं आपको इवोल्यूशन समझाऊंगी तो एक सेंटेंस के साथ समझाऊंगी. यू इजीली अंडरस्टैंड इट, which will make it clear to you. ठीक है. तो अभी हम बात कर रहे हैं कि why ये evolution होता है. that is due to variation. So first let us talk about variations. Now what is variation? Variation can be of two types. Variation can be somatic or I can say acquired. And variation can be germinal or I can say inherited. तो वेरिएशन तो आते रहते हैं, बट वेरिएशन कैसे होते हैं? कुछ सोमैटिक होते हैं, एक्वायर्ड होते हैं ड्यूरिंग लाइफ टाइम, कुछ होते हैं इनहेरिटेड जो आगे से आगे जनरेशन तक ट्रांसमिट होते हैं. नॉट ऑल वेरिएशंस आर ट्रांसमिटेड. डीएनए में चेंजेस आते रहते हैं, वो मैं आपको थोड़ी देर बाद या नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. बट लेट अस जस्ट नाउ टॉक अबाउट कि वेरिएशन कैसे कैसे होते हैं जो इवोल्यूशन को लीड कर जाते हैं. कुछ वेरिएशन ऐसे भी होते हैं जो इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, कुछ वेरिएशन ऐसे होते हैं जो इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. सो लेट्स टॉक. In a lifetime, in an organism's life, there are two types of variation. One can be somatic or acquired. These are not
transferred from one generation to, this gen is generation, okay, to other. These are transmitted or transferred from one generation to other. तो ये चीजें ध्यान रख लो, ये डिफरेंसेस भी पूछते हैं कई बार आपको. सो कुछ ऐसे वेरिएशन होते हैं जो एक ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ में एक्वायर करता है. जब वो बोर्न होता है तब वो वेरिएशन उसके पास नहीं होता. वेरिएशन वर्ड रिलेटेड टू दिस चेंज, सो यू विल अंडरस्टैंड वेरी इजीली. कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो उसकी जीन्स के अंदर नहीं लेकिन आ जाते हैं कई बार बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स. और कुछ ऐसे होते हैं जो उसके जर्म सेल्स या रिप्रोडक्टिव सेल्स को इफेक्ट करते हैं. वो वाले जो वेरिएशंस है वो एक से दूसरे जनरेशन तक जाएंगे. नाउ दीज कैसे होते हैं? लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट सोमैटिक और एक्वायर्ड. Acquired, a child is born, he grows up, he has received genes for a very fair skin. ठीक है, मान लो fair skinned person obviously throughout the life उसके genes तो वैसे ही वर्क करेंगे, लेकिन मान लो वो सनलाइट में बहुत समय स्पेंड करता है. Does the color of skin change? It changes. Why it changes? Because ultraviolet rays from the sun are falling on the cells and those cells are releasing more and more melanin. Melanin क्या है? आपके स्किन को कलर देने वाला पिगमेंट. उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है. बढ़ता क्यों है? एक्चुअली क्योंकि वो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम यूवी रेज. बट इन एज अ रिजल्ट क्या होता है? आपका स्किन का कलर डार्कन हो जाता है. ठीक है, तो ये भी एक चेंज तो है ना, ओरिजिनल से वेरिएशन आया है. बट ये वेरिएशन उसके रिप्रोडक्टिव सेल्स या जर्म सेल्स तक नहीं जाएगा, वो स्किन सेल्स में आ गया. सोमैटिक सेल्स है, नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स है. सो दैट विल ले, जब वो इंसान मान लो आगे कहीं जाके स्टार्ट स्टेइंग इनसाइड और टेक्स केयर और डज समथिंग, उसका ओरिजिनल कलर रहेगा, वापस आ जाएगा. ठीक है ना. सेकेंड एग्जाम्पल, ये तो हो गया ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ लाइट, है ना. सेकेंड एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल समबडी वांट्स टू परस्यू अ करियर इन वेट लिफ्टिंग और वांट्स टू बिकम अ मॉडल और वांट्स टू बिकम समथिंग रिलेटेड टू वेट ऑफ अ पर्सन. तो वो वैसी चीजें खाएगा. If he wants to increase weight, he would be eating a diet which is there to increase weight. If he wants to reduce the weight, reduce भी हो जाएगा. तो ये weight changes आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी रेसलर का चाइल्ड रेसलर ही बन जाएगा. नहीं, कुछ जीन्स होंगी जो उसको स्ट्रांग बनाएंगी, वो तो आगे ट्रांसमिट हो जाएंगी, लेकिन उसकी बॉडी में कितना फैट है और कितना वो थिन है विल नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन. वो तो उसने अपना एक्वायर किया, अपने रूटीन को चेंज किया, उसकी डेथ के साथ वो वेरिएशन खत्म हो जाएगा. ठीक है, ये वाले जो वेरिएशंस है ये एनवायरमेंटल कह सकते हैं. तो ये वेरिएशंस किसकी वजह से कई बार होते हैं? वन रीजन फॉर दिस वेरिएशन इज एनवायरमेंट. फॉर एग्जाम्पल लाइट, टेम्परेचर, there can be weight reduction or increase. One reason for this variation is also use and disuse of organs. कई बार आपने देखा होगा जितना किसी ऑर्गन को आप यूज करते हो उतना वो एफिशिएंट हो जाता है, और जितना आप यूज नहीं करते उतना वो वर्क नहीं कर पाता. फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन इज ट्रेनिंग फॉर रनिंग, हिज मसल्स वुड बी स्ट्रॉन्ग. हमको अगर कहा जाए कि उसके मुकाबले भागो, तो बिकॉज वी हैव नॉट ट्रेन्ड आवर बॉडी, आवर मसल्स विल नॉट रिस्पॉन्ड लाइक दैट. अ पर्सन इज वांट्स टू स्विम, तो उसके लंग्स उस टाइप से ब्रेथ होल्डिंग में वैसे ट्रेन हो जाएंगे, और कंपैरेटिवली वी विल नॉट बी एबल टू डू. सो जितना किसी ऑर्गन को आप यूज करोगे उतना वो एफिशिएंट हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, योर राइट हैंड एंड योर लेफ्ट हैंड, यू आर बोर्न विद द एबिलिटी टू राइट विद दिस. अब वो कौन सा माइंड पे भी डिपेंड करता है, बट you can write very speedily with your right hand compared to your left hand. ठीक है ना. तो कई ऐसे होते हैं कि यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स की वजह से
कुछ ऑर्गन्स एफिशिएंट हो जाते हैं, कुछ नहीं होते, तो ये वेरिएशंस है. दैट वाज, बट ये देखो एक ध्यान रखना, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स की एक थियोरी लेमार्क ने दी थी और वो रॉन्ग प्रूफ हो गई थी. राइट नाउ आई एम सेइंग वेरिएशन, सो वी कैन से कि हाँ ये वेरिएशन तो लाता ही है, लेकिन ऑलवेज दिस इज नॉट ट्रू. समटाइम्स इफ यू यूज योर ऑर्गन्स मोर एंड मोर, इट मे नॉट बी अ बेनिफिशियल इफेक्ट. वेरिएशन तो होगा, चेंज तो होगा, लेकिन जैसे आप आंखें एक्सेसिवली यूज करते हो, इट लीड्स टू द वर्सनिंग ऑफ द आईसाइट. नो, लेमार्क ने कह दिया था कि यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स से हमेशा बेनिफिशियल इफेक्ट आते हैं, ऑर्गन्स इफेक्टिव होते हैं. तो वो अभी अपन बात नहीं कर रहे, कहीं पढ़ो तो कंफ्यूज मत होना. अभी मैं आपको ये बता रही हूँ, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स लीड्स टू वेरिएशन एज वेल, चेंजेस एज वेल. ठीक है, सो दीज आर एनवायरमेंटल फैक्टर्स विच वर्क. डाइट, लाइट, टेम्परेचर, हैबिटेट. जैसे हैबिटेट में आप रहते हो वैसे आपके कैरेक्टर्स आ जाते हैं. ठीक है, सो दीज आर द फैक्टर्स विच लीड टू सोमैटिक वेरिएशंस, और वो कॉन्शियस एफर्ट से भी आ जाता है. लेकिन ये जो वेरिएशंस होते हैं, these are there in the genes. These may be due to errors in copying of the DNA. Mutations की वजह से कई बार आ जाते हैं. Mutation I would discuss later on. कई बार रेडिएशन, UV radiations या radiations की वजह से आ सकते हैं, which can be harmful also. जैसे आपने देखा होगा हिरोशिमा और नागासाकी में जो बॉम्बिंग्स हुए थे, उसकी वजह से आज भी जो चिल्ड्रन बॉर्न हो रहे, some of the other defects they are having because their genes were altered very badly. So those variations which were brought due to certain chemicals or certain radiations or some drastic changes which affected the germ cells, वो आगे से आगे inherit हो जाते हैं. ठीक है, ये about acquired and inherited variation है. अब आपको मैंने वर्ड म्यूटेशन बताया, दैट मीन्स चेंज इन डीएनए सीक्वेंस. डोंट से इट इज ऑलवेज बैड, डोंट अंडरस्टैंड बैड. गुड इफेक्ट्स भी होते हैं, बैड भी हो सकते हैं. ठीक है, बैड भी होते हैं ज्यादातर, लेकिन गुड इफेक्ट्स ऑल्सो होते हैं कई बार चेंजेस के. लेकिन जो केमिकल्स है दे लीड टू अ बैड चेंज. सो आई एम राइट नाउ एक्सप्लेनिंग ओनली व्हाट आर वेरिएशंस. दो टाइप के होते हैं, एक्वायर्ड और इनहेरिटेड. एक्वायर्ड इंसान की लाइफ में वो एक्वायर करता है, उसके साथ खत्म हो जाते हैं. इनहेरिटेड इंसान अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करता है और आगे जनरेशन तक ट्रांसमिट करता है. दे आर बीइंग कैरीड एंड दीज आर द वेरिएशंस व्हिच वुड लीड टू इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीशीज. दीज माइट हैव अ स्लाइट इफेक्ट. एक जनरेशन तक रहा, फिर नेक्स्ट जनरेशन में हल्का फुल्का डीएनए में चेंज आया, धीरे धीरे इफेक्ट कर सकता है, लेकिन डू नॉट हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इवोल्यूशन. ठीक है, सो दीज आर अबाउट वेरिएशंस. एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन? वेरिएशन का अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएशन, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन? तो फर्स्ट, इट लीड्स टू, नाउ आई एम सेइंग इन कॉमन, or it is the raw material, lays the raw material for evolution. Sometimes sometimes it gives survival benefit to organisms. Then third is, it lays a foundation or a raw material for evolution, and hence it makes organisms or gives organisms better capability to adapt in a habitat. Then because of variation, man has manipulated genes and it has led to the development of better and new species of plants and animals, vegetables specifically, eating products. ठीक है, तो
वेरिएशन ये रोल करता है. These are the significance, and because of this human life is certain characters are vanishing, certain are coming back. आप जानते हो अपेंडिक्स वेस्टिजियल ऑर्गन क्यों हो गया? बिकॉज उसका यूज अब नहीं है, तो उसमें धीरे धीरे चेंजेस आए, एंड नाउ it is acting as an organ which is having no specific use in the human body, but it is present. हो सकता है later on उसका डेवलपमेंट ही वो धीरे धीरे कम हो जाए. ठीक है, so variation leads to these benefits. It leads to new development of new species of plants and animals. अब मैंने भी आपको एक चीज बताई, it helps in organism to benefit to survive in a condition. वो कैसे, वो एक्सप्लेन करती हूँ. For example, this was a group of bacteria and they were reproducing asexually this way. ठीक है, इनमें see, मान लो this was their genetic material, so these were genetic material, same है. फिर उसके बाद कुछ ऐसे बैक्टीरिया हो गए जिसमें certain changes आ गया in the genetic material, little bit of change was there, some changes in the genetic material, है ना, कुछ चेंज आ गया. अब ये बैक्टीरिया would lead to new बैक्टीरिया जिसमें हो सकता है कुछ तो मान लो ऐसे ही रहेंगे सेम, क्योंकि ये रिप्रोड्यूस करेगा तो सेम ऐसा ही देगा, लेकिन कुछ हो सकता है कि धीरे धीरे नए कैरेक्टर्स वाले आ जाएं, कुछ चेंजेस एक्चुअली इकट्ठे हो जाएं. ठीक है, नए कैरेक्टर्स डेवलप हो सकते, ऐसे ये आता रहता है. दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस. ये कैसे हुआ वी वुड डिस्कस अ लिटिल बिट इन डिटेल, बट इट इज ऑल डिपेंडिंग ऑन नेचर. तो धीरे धीरे हो सकता है ये रिप्रोड्यूस करके एक ऐसे बैक्टीरिया इसमें आ जाए जो इस टाइप के हो. These were like original, these were different. अब मान लो these were habituated to live at 35 डिग्री सेंटीग्रेड. ये भी वैसे ही रहेंगे, ये सब वैसे 35 में तो करेंगे सर्वाइव, लेकिन मान लो 35 से एक बार ऐसा कुछ चेंज आया कि जिसकी वजह से टेम्परेचर वॉज रेज टू 45 डिग्रीज, इनके भी 45. अब ये these would face difficulty because they have been used to a temperature which is this. तो हो सकता है ये धीरे धीरे पेरिश हो जाए, खत्म हो जाए, उनकी सेल वॉल्स डिस्ट्रॉय हो जाए, या कुछ भी ऐसा कैरेक्टर हो जो ये खत्म हो जाएंगे. लेकिन इनमें कुछ वेरिएशन ऐसे थे, कुछ जीन्स ऐसी आ गई थी, कुछ डीएनए में ऐसी चेंजेस आ गई थी जिसकी वजह से उनका सेल वॉल थोड़ा सा स्ट्रांग हो गया था, रेजिस्टेंट टू टेम्परेचर हो गया था. मान लो ये डीएनए का वेरिएशन ये था, तो ये क्या करेंगे, ये सर्वाइव कर जाएंगे. दे वुड. सो दिस वेरिएशन गिव देम सर्वाइवल बेनिफिट. उस चेंज की वजह से उनमें ऐसा कुछ कैरेक्टर डेवलप हो गया कि उस टेम्परेचर में वो सर्वाइव कर पाए. सो दिस इज एक्सप्लेनिंग हाउ इट कैन लीड टू सर्वाइवल बेनिफिट. ऑपोजिट भी हो सकता है, डोंट वरी, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस. ठीक है ना. सो दिस इज अबाउट वेरिएशंस. आई वुड बी टॉकिंग अबाउट दिस ट्रांसमिशन ऑफ डीएनए. थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर भी मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट टाइम, अभी टाइम लिमिट है. तो डीएनए का जब ट्रांसमिशन होता है ना, यू नो लिटिल बिट अबाउट मियोसिस, माइटोसिस. ट्रांसमिशन के दौरान डीएनए की पहले एक कॉपी बनती है, फिर 2 सेल्स में डिवाइड होता है. कॉपी बनती है, फिर 2 सेल्स में डिवाइड होता है. दीज मैकेनिज्म, जो कॉपिंग का प्रोसेस है, उसमें कुछ कुछ चेंजेस आते रहते हैं, माइन्यूट. इन चेंजेस को ही म्यूटेशंस बोल सकते हैं. और म्यूटेशंस आर समटाइम्स सटल, पता भी नहीं चलता. समटाइम्स दे कैन लीड टू ड्रास्टिक चेंजेस, समटाइम्स दे कैन बी बेनिफिशियल, समटाइम्स दे कैन बी हार्मफुल. तो इन्हीं म्यूटेशंस की वजह से चेंजेस आते हैं, वेरिएशन आते हैं और लीड टू न्यू कैरेक्टर्स. इसकी डिटेलिंग अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. राइट नाउ जस्ट स्टडी व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएशन, व्हाट आर एक्वायर्ड एंड व्हाट आर इनहेरिटेड वेरिएशंस. नेक्स्ट में अपन मेंडल के बारे में भी पढ़ लेंगे और डीएनए का भी थोड़ा डिटेल स्ट्रक्चर भी आपको मैं बता दूंगी. बट ये माइंड में क्लियर कर लेना कि इस चैप्टर का बेसिस क्या है, हमें क्या पढ़ना है. कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है. इट्स अ वेरी सिंपल चैप्टर. बस वर्ड्स इधर उधर आते हैं ना, तो आपके माइंड को कंफ्यूज करते हैं. अभी मैंने जो बोला उसको समझो कि एक लाइफ में हो ही रहा है हमारे आसपास, हम जानते ही इस चीज को.
इट्स नॉट डिफिकल्ट, बस थियोरी थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है, ठीक है। सो राइट नाउ हमने एक स्लोली मैंने आपको क्या पढ़ने वाले हैं वो एक्सप्लेन किया, उस पूरे प्रोसेस का बेसिस क्या है, वेरिएशन, वो कैसे आते हैं, म्यूटेशन की वजह से आते हैं, इसका मैं डिटेल आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगी अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। सो टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टडी वेल। नेक्स्ट टाइम अपने रजिस्टर्स और रिलैक्स्ड माइंड लेके मिलते हैं अपन, ठीक है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।